morning, everyone. Am I audible to you? Yes, ma'am. Wait for 5 minutes. इसके बाद भी क्लास है क्या टीटी में? आप लोगों की क्लास होती है क्या 11 बजे से? So today we will study RK method, which is Runge-Kutta method for second order, third order, and the fourth order. Again, completely based on the formula type. So I'm going to write down the formula for the RK method, and then we will solve the problem based on the method. I hope modified Euler and the Euler method, is that clear to you? Clear हो गया था modified Eulers and the Euler's method. It's going to be used in RK method actually. Yes or no? Yes, ma'am. एक ही किसी एक की आवाज आती है, बाकी तो सब ऐसे बैठते हैं जैसे कुछ मैंने नाम दिया ऐसे बोल दिया अलग से. चलिए, एनीवेज मैं फॉर्मूला बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है. मैंने पहले बोला हुआ है, थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर लिया करना. और RK method. This is the last method in this topic. हमने पढ़ा है Picard's method, Taylor series method, Euler's method, modified Euler's method, and predictor and the corrector method. And this is the last one. So if you remember from the modified Euler's method, we all know that last class में पढ़ा था. Modified Euler's method, we have by n plus 1 is by n. इसमें क्या होता था, एवरेज होता था, जो स्लोप था उसमें हम स्लोप का एवरेज ले लेते थे. तो इट्स f of x and y n, f of x n plus 1 by n plus 1 star, ये था. Now please mute your mic.
अभिषेक जोशी. यस मैम. माइक म्यूट कर दिया करो. So this is the formula from the modified Euler's method. Now in this, I'm taking n is equals to 0. So we get the value of first equation, which is y1, h by 2, f of x naught y naught, plus f of x1 y1 star, and this y1 star will be evaluating by Euler's method. This is from Euler's method. By Euler's method, we have y1 star is equals to y naught plus h f of x naught y naught. तो ये हमारे पास Euler's method and modified Euler's method से ये formulas थे. This is equation number 3. Now from equation 2nd and 3rd, from equation 2nd and 3rd, y naught plus h by 2 f of x naught y naught plus f of x1 और y1 स्टार की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ यहाँ पर y naught plus h f of x naught y naught. This is from the Euler's method. यहाँ पर मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया and और we can write f naught को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f of x naught y naught. f naught denotes the function value of the function at x naught y naught. So I'm changing the notation in the next step. This is f naught plus f of x1 y naught plus h f naught. और now setting k1 is equals to h f naught and k2 is equals to h of f of x naught plus h y naught plus इसकी जगह हमने क्या लिखा है k1. So y1 is equals to y naught plus 1 by 2 k1 plus k2, and this is known as, this is RK formula for second order. यहाँ पे k1 और k2 दो हैं, so this is for the second order. और थर्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास तीन वैल्यूज इवैल्यूएट होंगी अराउंड एंड देन 4. सो अगेन अगर आपके पास आरके मेथड से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आती है, कुछ भी मेंशन नहीं है, देन गो फॉर द फोर्थ ऑर्डर. अगर मेंशन है कि सेकंड ऑर्डर तक अप्लाई करना है, तो दिस इज द इटरेशन फॉर आरके मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर इन विच y1 is y naught plus 1 by 2 k1 plus k2 and k1 is h of f naught and k2 is h of f of x naught plus h y naught plus k1. और ये जो हमारे पास इवैल्यूएट होकर आया है, ये दिस इज फ्रॉम द Euler's मेथड एंड द मॉडिफाइड Euler's मेथड. उसी में हमने कुछ टर्म्स को सेट डाउन करा है एंड देन वी इवैल्यूएट द Euler's मेथड. So next we also make some further setting for RK method of third order and then the fourth order.
further setting K1 is equals to h of f of x naught y naught. K2 is equals to f of x naught plus h y naught plus K1. K3 is equals to h of x naught plus h y naught plus K2. एंड मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ इसके. वी ऑल्सो हैव द प्रूफ ऑफ ईच एंड एवरी वन. डायरेक्टली राइटिंग डाउन, आप इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि K1, K2, K3, K4 कैसे इवैल्यूएट हो रहे हैं. दिस इज K1 by 2. देन yn plus 1 is equals to yn plus k, and k is equals to 1 by 6 of K1 plus K2 plus 4 K4. And these formulas, these are for RK method for third order. Generally third order कभी पूछा नहीं जाता है, but this is for your information. Generally fourth order पर हम problem solve करते हैं. So next I am going to write down the RK method for fourth order, and this is again further setting some values, and we have obtained the RK method of second order, fourth order. Again setting some values. K1 is equals to h of f of x and yn. K2 की वैल्यू यहाँ पर है xn plus h by 2 yn plus k, yn plus K1 by 2. K3 is equals to xn plus h by 2 yn plus K2 by 2, and lastly K4 is equals to f of xn plus h and yn plus K3. ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा. Then yn plus 1 is equals to yn plus k, and here k is 1 by 6 K1 plus 2 K2 2 K3 plus K4. तो do remember what will be the value of k. k की जो वैल्यू है वहाँ पे, यहाँ पर 1 by 6 K1 2 K2 2 K3 plus K4, and the corresponding value of K1, K2, K3 and K4 are given by these functions. So this is RK method for fourth order. All these method order of the RK method, these are evaluating using the modified errors and the RMS technique. So next I am going to take a problem. The same problem जो हमने पहले दूसरी टेक्निक से भी सॉल्व की है, उसको अभी हम RK मेथड से सॉल्व करेंगे. तो RK मेथड अगर मैं नहीं मेंशन है, देन गो फॉर RK मेथड फॉर द फोर्थ ऑर्डर. Question here is, using RK method, find the approximate value of
These all are the numerical techniques that give the approximate values, जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं. Find the approximate value of y 0.2 if dy by dx is equal to x plus y square, and it's given that y is equals to 1 when x equals to 0. ठीक है, मतलब इनिशियल वैल्यू मुझे दे रखी है. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h हियर? h कितना होगा? पॉइंट वन. मैम h की वैल्यू 0.1 होगी सर. कैसे आई? It's given in the problem. मैम कोई सारे प्रॉब्लम में नहीं गिवन होता है मैम. अगर नहीं गिवन होता तो वहां पे जो नोट्स गिवन होंगे हमें 2 पॉइंट्स, ठीक है, हाँ. उन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे. एक्चुअली h इज द डिफरेंस बिटवीन जितना x0, x1, x2, x3 जो भी हमें डिफरेंस दे रखा है पॉइंट्स में. ठीक है, तो वहां से आप मैम जैसे यहाँ पे भी तो x की 2 वैल्यू दे रखी है ना, एक तो 0 और यहाँ एक पर तो 0.2. यहाँ पर तो आपको h गिवन है प्रॉब्लम में. अगर नहीं गिवन होगा तो वहां पे आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, उन पॉइंट्स के बीच में आप डिफरेंस निकाल सकते हो. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मेरे पास 0 है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मेरे पास कौन सा होगा? फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास होगा x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h, मीन्स x1 मेरे पास कितना होगा? 0.1 एंड थर्ड पॉइंट विल बी 0.2. अगर h मेरे पास यहाँ पे 0.1 है. अगर नहीं दी हुई होगी तो वहां पे आपको नोट्स गिवन हो, पॉइंट्स गिवन होंगे, जैसे कि 4 पॉइंट्स गिवन थे, राइट? आइलर्स मेथड से जब हमने किया था तो उसमें हमने इनिशियल पॉइंट का और जो नेक्स्ट पॉइंट था उसका हमने डिफरेंस देखकर h निकाल दिया था. fx y is that x plus y square, x0 यहाँ पर दे रखा है 0, y0 दे रखा है 1 and the value of h is 0.1. Now using RK method of fourth order, by RK method of fourth order, y1 means y of x1. इस बात का यही मतलब होता है, means y of 0.1 and it's equals to y0 plus k. ये भी मैंने आपको लिखवाया था. So it's y0 कितना दे रखा है? 1. It will be 1 plus k. And here k is equals to 1 by 6, k1, 2k2, 2k3 plus k4. ठीक है, ये होगा. बट मुझे यहाँ पर क्या इवैल्यूएट करना है? मुझे y 0.2 इवैल्यूएट करना है. मतलब मुझे यहाँ पर एक और इटरेशन करना पड़ेगा, तभी मेरा y 0.2 इवैल्यूएट होगा. सो फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू इवैल्यूएट होकर आ रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ y1 विच इज y 0.1 पर. नाउ वैल्यू ऑफ k1 इज सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला. k1 मीन्स h of f of x0 y0. k2 is h f of x0 plus h by 2 y0 plus y0 plus k1 by 2. k3 is equal to h of x0 plus h by 2 y0 plus k2 by 2 and k4 is equal to
x naught plus h, y naught plus k3. This is from RK method of fourth order. So मुझे x naught पता है, y naught पता है और h भी पता है. फंक्शन जो गिवन है that is x plus y square. f of x y is x plus y square. It means this is x naught plus X naught plus Y naught. y naught square. Value of h is 0.1. x naught given, x naught कितना दे रखा है? 0. 0 And y naught is 1. 1 1. 1. So this is 0.1. Okay. Now this h is, do evaluate it. यहाँ पर जो h है मेरे पास, 0.1 sorry, h will be 0.1. x naught plus h by 2 means x naught कितना है? 0. 0 और h is 0.1 by 2. So this is 0. ये आएगा. Yes, ma'am. और x naught Yes, ma'am. वैल्यूट करके क्या आएगा? Evaluate it. y naught Why is not 1? 1. 1 plus k1 by 2. 1 plus 0.1 by 2. 1 point. 1. 1.1025. तो भी आ रहा है. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. दिस इज 0.1 मीन्स x प्लस वाई स्क्वायर. तो दिस इज 0.05 प्लस वाई स्क्वायर. इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर जो भी आएगा. ओके, मैं इसका जो भी वैल्यूएट होकर आ रहा है मैं एक बार वो लिख रही हूँ यहाँ पर जो भी आ रहा है. मैम 1.1025 आ रहा है. 0.1152 525 अच्छा, आप फाइनल बता रहे थे कि मैं टू चेक योरसेल्फ. इसको इवैल्यूएट करके ही आएगा. एंड इन द सेम वे यहाँ पर जब हम इवैल्यूएट करेंगे तो आई एम गेटिंग 0.1169 जल्दी तो आप इवैल्यूएट नहीं कर सकते. बुक में देख के बता रहे हो मेरे को. 0.05 and again y naught plus k2 by 2. Y naught is 1. Value of k2 is, this is 0.11525 by 2. So again x naught plus y naught square. इसको इवैल्यूएट करने के बाद आएगा 0.13474 and lastly no this is 0.11. 0.11685. आप इसको कैलकुलेशन को चेक कर लेना एक बार अपने आप से करके. एंड इन द लास्ट वी विल गेट k4 इज 0.13474. So now we have k1, k2, k3 and k4 which is required for evaluating the value of k. So k is equal to 1 by 6, 0.1 plus twice of k2 means twice of 0.11525 plus twice of k3 and k4. 0.1165 which is the value which is required for evaluating the value y 0.1. y 0.1 की वैल्यू मेरे पास हो गई यहाँ पर 1 plus k and it's equals to 1 plus 0.1165 which is 1.1165. Now in this problem मुझे जो इवैल्यूएट करना है मुझे by 0.2 पे इवैल्यूएट करना है. ठीक है, अगर 0.1 तक इवैल्यूएट करना होता तो इट्स ओवर हियर. बट अभी जो वैल्यू इवैल्यूएट करनी है वो by 2 इवैल्यूएट करनी है.
y2 के लिए क्या होगा? Now y2 means y of plus k. y of 0.2, ठीक है, बिकॉज x2 मतलब क्या हो गया? x2 इज इक्वल्स टू x0 plus 2h. This is 0.2. y2 means y at 0.2 and it's equals to y1 plus k. Okay. Now y1 कितना है? y1 मेरा यहाँ से इवैल्यूएट होकर आया. दिस इज माय y1 जो फर्स्ट इटरेशन में इवैल्यूएट हुआ है. तो वैल्यू ऑफ y1 इज, यहाँ पे लिख लो, y1 इज इक्वल्स टू 1.1165. वैल्यू ऑफ x1 कितना होगा? x0 plus h which is 0.1. So y1 plus k means 1.1165 plus k. अब अगेन मुझे k इवैल्यूएट करना है. ओके, तो डू रिपीट द प्रोसीजर अगेन और इसमें उसको सब्स्टिट्यूट कर दो. अगर y 0.3 होता मीन्स y3, तो फिर इस इटरेशन का यूज किया जाता है इसमें. इज इट क्लियर टू यू? जी मैम. मैम में k की वैल्यू कैसे इवैल्यूएट होगी? सॉरी, k की वैल्यू बताओ क्या होगी? k के लिए मुझे वापस से k1 k2 k3 1/6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 क्या? जैसे अभी पहले इवैल्यूएट की थी. पहले जैसे इवैल्यूएट करिए. अब हम यहाँ पर मैम अब हम यहाँ पर 0.1572 आएगा. पहले जो हम फंक्शन ले रहे थे वो हम x0 y0 पर ले रहे थे, राइट? अब हमारे पास जो नॉट्स हो गई हैं, दीज आर चेंजिंग नाउ. दिस इज 0.1 एंड 1165. ओके, तो अब यहाँ पर जो k1 होगा, k1 की वैल्यू क्या होगी? k1 is equals to h f of x1 y1. ठीक है, पहले हमारा इनिशियल चल रहा था तो y0 x0 y0 पर चल रहा था. तो x1 मेरे पास कितना है यहाँ पे? दिस इज 0.1, मतलब x1 plus y1 स्क्वायर. ओके, तो डू सॉल्व दिस. दिस विल बी, जो भी आएगा इसको 1.116 का स्क्वायर हो जाएगा. सॉरी, 1.1165 का स्क्वायर होगा y1. हाँ वही होगा 1.1165 होल स्क्वायर. तो इसको इवैल्यूएट करके जो भी आएगा 0.1347. whatever जो भी आ रहा है. इन द सेम वे इवैल्यूएट k2 k3 k4. तो जब आप ये सारे इवैल्यूएट कर लोगे, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. k की वैल्यू वही रहेगी 1/6 ऑफ k1 plus 2k2 2k3 plus k4. ओनली द डिफरेंस इज दिस कि पहले जो हम आरके मेथड को लेकर सॉल्व कर रहे थे उसमें हम इनिशियल पॉइंट्स लिया था x0 y0, ठीक है. अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं नेक्स्ट इटरेशन में ये चेंज हो गए हैं x1 y1. और अगर इसके बाद भी इवैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है तो इसी के यूज से हम इवैल्यूएट करेंगे देन x2 y2. इन द सेम वे वी कैन रिपीट इट द प्रोसीजर अगेन एंड अगेन जहां तक भी इवैल्यूएट करवाने की जरूरत हो. लेकिन प्रॉब्लम इन जनरल जो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमम अप टू 2 इटरेशंस तक आती है, इससे ज्यादा नहीं आएगी. ठीक है, तो लाइक इसमें हमारा 2 इटरेशंस में कंप्लीट हो गया है. सो व्हेन वंस यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, just substitute it here, you will get the value of y2 means the value of y at 0.2. Okay, so do complete this problem. This is completely formula based. इसमें ये याद रखना है बस कि हमारी जो यहाँ पर वैल्यूज हैं k1 k2 k3 k4 ये कैसे इवैल्यूएट हो रहे हैं. एंड विद दिस टॉपिक ये जो आपका न्यूमेरिकल मेथड्स पार्ट 2 में फर्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. इट्स कंप्लीटेड हियर एंड इन नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वी विल स्टडी अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक है, जैसे कि हमने रूट्स पहले हम डायरेक्टली निकालते थे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, न्यूमेरिकली हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। क्लियर? यस ये इस क्वेश्चन में आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर ही क्यों यूज किया? आप इसको आर के मेथड ऑफ थर्ड ऑर्डर से भी निकाल सकते हो, टू सेकंड ऑर्डर तक भी निकाल सकते हो। वी गेट द बेटर सॉल्यूशन यूजिंग आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। इफ इट्स नॉट मेंशन इन द पेपर देन गो फॉर आर के मेथड फॉर फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, अगर लिखा आता है कि सेकंड ऑर्डर से करना है देन ऑप्ट फॉर द सेकंड ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द अदर वंस। वो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड या फोर्थ से कैसे इवैल्यूएट करते हैं, बट अगर नहीं होता तो फोर्थ ऑर्डर ही अप्लाई करना है। Is that okay? जी मैम। Any other problem? मैम क्या इन चारों मेथड से अलग अलग आंसर आएंगे या सेम? सॉरी, कोई एक बोलो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, चारों मेथड से आंसर अलग अलग आएंगे या सेम? ऑब्वियसली अलग आएंगे। जितने भी मेथड्स हैं, आप किसी एक प्रॉब्लम को जितने मेथड से सॉल्व करोगे, दिस गिव्स द अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। ये सारी न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं जो हमें एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देगी। तो आप जिस भी मेथड से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, वो मेथड आपको डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि आप न्यूमेरिकल टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो तो आप 4 या 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमेशा प्रॉब्लम को लो। ओके, कोई भी न्यूमेरिकल मेथड जब हम अप्लाई करते हैं, जितने भी मेथड्स अवेलेबल होते हैं वो हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन देते हैं, वो एग्जैक्ट नहीं देते। इसलिए हर मेथड में एरर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को अगर आप सेकंड ऑर्डर से करोगे यू विल गेट द डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन जब अगर मैं फोर्थ ऑर्डर लगा रही हूँ तो ये मुझे एग्जैक्ट के नियर बाय सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज जो जितना भी हम नियर बाय जा रहे हैं एंड दैट गिव्स द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। इज इट क्लियर? जी मैम। Any other problem? And one more thing, do submit your assignment on time. उसका शायद 26 task था, I think assignment second का। Please do submit on time. 26 कल लास्ट था मैम। मैं अब आपका आज उसको सबमिट कर दो, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी बाद में। And I'm going to share one more assignment which is based on these all methods. ठीक है, तो उसमें भी मैम क्वेश्चंस थोड़े कम सेंड करना मैम, होते ही नहीं है। यस फॉर द प्रैक्टिस। पहले वाला जो अभी सेकंड असाइनमेंट था उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे, जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। जी मैम। ठीक है ना, तो वैसे तो प्रैक्टिस करते नहीं हो, असाइनमेंट के लिए प्रैक्टिस कर लो। मैं 5 उसमें कुछ सॉरी उसमें अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मतलब आपने पढ़ा ही नहीं थे मैम। हाँ वो मुझे पता है। तो आज के मेथड हाँ, उसको छोड़ दो। मैम वो लीव कर इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हमारा अभी टॉपिक भी कवर नहीं हुआ है, बट अराउंड 80% 90% हो चुका है। कुछ परसेंट थोड़ा सा 80-90% हुआ था। ठीक है, अभी जो मैं थर्ड असाइनमेंट दूंगी, मैं उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको दूंगी हर मेथड से। ठीक है, टू सबमिट ऑन द टाइम प्लीज। यस मैम। मैम नेक्स्ट क्लास चालू गई, लीव कर सकते हैं? ओके, यस हाँ मैम। श्योर। थैंक यू मैम। मैम आपकी बार कम से कम 10 दिन का टाइम तो देना असाइनमेंट जमा करवाने के लिए मैम। 10 दिन? मैम 10 डेज का देना। ऑलरेडी 10 डेज ही है हर बार। मैम इस बार वाला कम था। अरे तो अभी तक करा ही कहाँ है? 10 दिन तक आप सबमिट ही करते रहोगे। अभी तक तो लोग फर्स्ट असाइनमेंट भी सबमिट कर रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सेकंड मिलने के बाद। उनको मैम बाहर निकाल दो कॉलेज से ही। हाँ, अभी तो सभी बाहर है। अभी तो सब घर पे आराम कर रहे मतलब हैं। मैम टीसी काट दो नो की। चलो एनीवेज, मैं अभी लीव कर रही हूँ, इसको क्लास को स्टॉप कर रही हूँ। एंड प्लीज डू प्रैक्टिस जितना भी आप कर सको। अगेन वही एक चीज कि आप प्रैक्टिस करो एंड जो भी प्रॉब्लम्स हो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।